Hello, I wish you a very warm good morning to dear student. Today I will going to discuss about the adrenal gland. In previous lecture, we were also discuss about the structure of adrenal gland, the periphery structure of the adrenal gland, and internal structure of adrenal gland. They are divided into two parts: the outer part of adrenal gland known as the cortex region, and inner part known as the medulla region. The cortex region also divided into three portions: outer to inner, zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticulata. But the inner part of the medulla, which is formed by neural ectoderm or originated from the neural ectoderm, it is completely made by the neuron और नर्वस टिश्यू. ओके बच्चों, फिर हमने यहाँ पर बात की थी इन प्रीवियस लेक्चर. There are three portions of the cortical region, cortex region of the adrenal gland. They secrete a different type of hormone, like zona glomerulosa. They secrete the mineralocorticoids type of hormone. In the mineralocorticoids hormone, the main dominant hormone is the aldosterone hormone. It is very important hormone. It is a control, regulate of the salt in our body, so called the salt retaining hormone. Especially sodium and potassium are regulated by that type of hormone. Then today we will going to later part of the adrenal gland, second part of the adrenal gland, like zona fasciculata. The zona fasciculata secrete a group of hormone that is called glucocorticoids hormone. In glucocorticoids hormone, the main dominant hormone is the cortisol hormone. What is the function of the cortisol hormone and how to useful our body? Today we will discuss about it. तो बच्चों, इसे हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर इस हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है और क्या हमारे अंदर ये फंक्शन कर रहा है. तो आइए बच्चों, हम हमारे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप बने रहिए, स्क्रीन के ऊपर देखते रहिए और इसे बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन यहाँ फंक्शन करता है. ग्लूकोकॉर्टिकोइड इज द सेकंड मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन. इट इज सीक्रेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय ACTH. The aldosterone or mineralocorticoid is regulated by the RAS system, renin-angiotensin aldosterone system. But that type of hormone regulated by the ACTH, which is secreted by the pituitary gland. Adenohypophysis region. The ACTH also regulated by CRH, which is secreted by the hypothalamus. These regulate metabolism and resistance to stress. These include cortisol, hydrocortisone, and corticosterone and cortisone hormone. Many type of hormone include in the glucocorticoid hormone, but main dominant hormone is cortisol hormone. The cortisol is the most abundant and accounting for the about 95% of the glucocorticoid activity. Okay students, okay बच्चों, the cortisol is the most abundant hormone accounting for about 95% of the glucocorticoids activity regulated by the cortisol hormone. So it is very important hormone. What is the function of the cortisol hormone? It is an important hormone secreted by the zona fasciculata. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यहाँ पर ध्यान रखिए. कौन रिलीज कर रहा है, कौन सीक्रेट कर रहा है? तो आप कहोगे यहाँ पर जोना फेसिकुलेटा इसे रिलीज कर रहा है. इट अकर वाया टिपिकल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. एक रेगुलेशन, हार्मोन रेगुलेशन की बच्चों इसमें एक मेथड है, इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के रूप में इसे हम जानते हैं. तो इस प्रकार से ये कोर्टिसोल हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है. अब ये कोर्टिसोल हार्मोन क्या फंक्शन करता है, कैसे रिलीज होता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, तो हम अलग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर कि यहाँ कौन कौन इसे रेगुलेट करेगा. तो फर्स्ट टाइम देखिएगा बच्चों, यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द कोर्टिसोल हार्मोन. फर्स्ट टाइम द हाइपोथैलेमस
secret of the CRH, okay, then CRH come into the adenohypophysis, adenohypophysis of pituitary gland. That CRH act on the corticotrope cell of the adenohypophysis, corticotrope cells, and that is secrete ACTH. The ACTH through blood circulation, through blood stream, come into the adrenal gland, adrenal zona fasciculata, and that part secrete the cortisol. The mainly secret of the glucocorticoid hormone. In glucocorticoid hormone, the cortisol is the main hormone. That is very, very important hormone. What is the function of the cortisol hormone? In shortly, we can see that function of the cortisol hormone. The first main function of the cortisol hormone, the glucose level increase in our body, in our blood. फर्स्ट आप याद रखिए बच्चों को, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के रूप में यहाँ बताना चाह रहा हूं. यहाँ पर ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर, ये इंक्रीज कर रहा है. देन सेकेंड फंक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लिपोलाइसिस हार्मोन. यहाँ पर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देखिएगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. तो आप देखोगे यहाँ पर लिपोलाइसिस हार्मोन है. ये लिपोलाइसिस का मीनिंग लिपिड ब्रेकडाउन. ये हार्मोन यहाँ पर लिपिड ब्रेकडाउन करता है. यहाँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब लिपिड ब्रेकडाउन कर रहा है तो देखिए यहाँ बच्चों आप यह हार्मोन लिपिड ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है इन ब्लड. तो अपने जो शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, नॉर्मल जो सेल है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी प्रोबेबिलिटी को ये कम करके ग्लूकोज को अंदर एंटर करवाने से रोकने का काम कर रहा है ये, जिससे सेल क्या करेगी, यहाँ पर लिपिड को ज्यादा काम में लेगी, यहाँ फैट को ब्रेक डाउन करेगी. तो एनर्जी का सोर्स क्या होगा हमारे पास में, यहाँ उस समय लिपिड होगा, फैट होगा. तो फैट ज्यादा से ज्यादा यह ब्रेक डाउन होगी. लेकिन ये क्या कराता है, फैट को यहाँ ब्रेक डाउन करके अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर भी डिपॉजिट करवाने का काम करवाता है यहाँ. तो इट इज लिपिड लाइपोलाइसिस हार्मोन. अब ग्लूकोज लेवल यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ हायर कर रहा है. ये हार्मोन क्यों कर रहा है ग्लूकोज लेवल हायर? इसलिए कर रहा है, हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, ये न्यूरॉन सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत ही कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट है अपना डालता है ये हार्मोन. कैसे डालता है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो न्यूरॉन है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है बच्चों, वो न्यूट्रिएंट के रूप में परमेबल है ओनली फॉर दी ग्लूकोज. ये याद रखना, यहाँ पर केवल ग्लूकोज के लिए परमेबल है. इसलिए ये हार्मोन क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हायर बनाए रखता है. यहाँ पर हायर मेंटेन करेगा. यहाँ पर क्यों करता है? ताकि ग्लूकोज नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू मिलता रहे. इसके कारण हमारे अंदर जब हम भूख की स्थिति में होते हैं, जब हम खाना नहीं खाया हुआ होता है, जब हम ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ होता है, जब हमें भूख लगी हुई होती है, उस समय यह हार्मोन रिलीज करेगा. रिलीज करके ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा. कैसे करेगा ये? तो हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस मेथड से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है. और दूसरी मेथड से यहां ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेथड से यहां पर ग्लूकोज इंक्रीज कर रहा है. इन दोनों मेथड से क्या हो रहा है, यहां देखिएगा, इससे भी ग्लूकोज बनता है, इससे भी ग्लूकोज बनता है. यहाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मीनिंग है द ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज इन द लिवर सेल, दैट इज कॉल्ड glycogenolysis meaning the glycogen breakdown into the glucose in the liver cell as well as in the muscles cell. Then glycogenolysis meaning other than substances sugar, तो
like amino acid and fatty acid convert into the glucose. That type of method known as the gluconeogenesis. तो ओवरऑल ग्लूकोज का लेवल ये इंक्रीज करवाता है कब, जब हम भूखे होते हैं, जब हमें खाना नहीं मिल रहा होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवाने का काम कोर्टिसोल करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि बच्चों हमारे जो मैंने कहा नर्वस सिस्टम है वो केवल परमेबल है किसके लिए? ग्लूकोज के लिए परमेबल है। एनर्जी का सोर्स उसके पास में ओनली ग्लूकोज है। मान लो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, सपोज हमारे अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया, तो नर्वस सेल के पास में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा या कम पहुंचेगा तो नर्वस सेल के अंदर प्रोबेबिलिटी है वो ग्लूकोज की कम होगी, जिससे ठीक तरीके से एनर्जी है वो नहीं मिल पाती है नर्वस सेल को, और हम स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएंगे। और हमारा लगातार ऐसी कंडीशन रहने से डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन डीजनरेट होते जाते हैं बच्चों, और न्यूरॉन डीजनरेट होगा तो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक होगा। हमारी बॉडी इम्प्रॉपर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी बॉडी के फंक्शंस है ऑल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द न्यूरॉन एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द न्यूरॉन। या तो ऑर्गन्स के फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाएंगे, तो इट इज हार्मफुल इफेक्ट है। इसलिए ग्लूकोज को मेंटेन रखने के लिए कोर्टिसोल है मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है। सो द glucose level increase by the many methods like glycogenolysis, like gluconeogenesis. Okay, you are clear, understand, absolutely understand about the topics. Lipolysis increase कर रहा है। Then next important function यहाँ बच्चों क्या है? अदर बहुत सारे फंक्शन ये करता है। कोर्टिसोल also inhibit the WBC formation है, blood cell formation है, inhibit the WBC formation। कोर्टिसोल यहां पर WBC फॉर्मेशन क्यों इनहिबिट कर रहा है? अब ये कोर्टिसोल इनहिबिट कर रहा है तो क्या यहां कहां इसके लिए यूजफुल कहां है ये बात? तो इट इज हेल्पफुल फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इट इज हेल्पफुल फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका क्या बहुत बड़ा यूज है। यहां उस समय इसकी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं कोर्टिसोल के, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़े समय के लिए सप्रेस हो जाए। द कोर्टिसोल हेल्पफुल इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ड्यू टू it secreted by the body and injected outside from the body, then they act on the our immune system, and immune system will be suppressed or inhibited for some time. That is known as the immunosuppressive hormone, immunosuppress hormone. That is a very important question. Which of the following is immunosuppress hormone? Life saving hormone. Immunosuppress hormone also known as cortisol, also known as life saving hormone. Life saving hormone. It is also helpful during the inflammatory response against to the एनी एंटीजन और पॉइजन से। तो वहां पर भी कोर्टिसोल का बड़ा यूज किया जाता है। कोर्टिसोल बहुत ही, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए हमारे पास में हमारी बॉडी के अंदर, उसमें ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्पफुल है। तो इस प्रकार बच्चों ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरी कंडीशन में यहां बताऊं मैं, व्हेन द कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल बच्चों यहां पर हाइपर हो गया। When the hyper condition of the cortisol hormone, then the glucose level will be higher in the blood. Glucose level will be higher in the blood, and the lipid, most of lipid break down from the thigh and tummy, and that type of lipid deposit inside of the neck and at the face,
and the face just like moon, and the neck just like buffalo. That type of disease known as the Cushing disease. Cushing disease will be occur during higher level of the cortisol in our body. In the Cushing disease, the face is just like moon. चांद सा चेहरा हमारा हो जाता है, मून लाइक फेस हो जाता है. That is called Cushing disease. When the aldosterone higher in our body, hypersecretion of the aldosterone by the zona glomerulosa, then higher level of the sodium absorbed and higher level of the potassium will be excreted by the body. So the sodium and potassium ions are imbalanced in our body. Then a special important disease will be occur, that is called Conn's disease. Okay, bachcho, what do you mean about this? Aldosterone, when aldosterone higher in our body, इसकी डिटेल हम करेंगे. Then Conn's disease will be occur. Conn's disease. Second disease is Conn's disease. First is the Cushing disease. So, two type of disease occur when the dissimilarity, abnormality of the adrenal cortex, when hypersecretion of that type of hormone, when both hormones are hyposecretion in our body, like aldosterone. If the aldosterone low level of found in our body, as well as cortisol also low level found in our body, तो both type of hormone, आगे देखिएगा यहाँ aldosterone, when aldosterone ये बच्चों यहाँ पर कम हो रहा है, cortisol यहाँ पर कम हो रहा है, ये दोनों हार्मोन यहाँ पर लेस लेवल पर होगा. एक और डिजीज यहाँ पर डेवलप हो जाती है, इसे हम कहेंगे एडिशन डिजीज. एडिशन डिजीज. The Addison disease is a first discovered disease related to the endocrine gland and discovered by the Addison in the respect of the discovery of that type of disease. So the given the father name, the father of endocrinology, what? The Addison. एडिसन को बच्चों यहाँ पर फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हम यहाँ पर कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने सबसे पहले ये डिजीज डिस्कवर की थी. कौन सी? एल्डोस्टेरोन की कमी से और कोर्टिसोल की कमी से. तो ये इस प्रकार से तीन डिजीज आपके पास में मेन इंपॉर्टेंट डिजीज यहाँ पर हो गई है. फर्स्ट इज कुशिंग डिजीज, सेकंड इज कॉन्स डिजीज एंड थर्ड इज एडिशन डिजीज. एडिशन डिजीज है वो हाइपोसिक्रेशन से हो रही है, लेस सिक्रेशन से हो रही है, और यहां पर कॉन्स डिजीज और कुशिंग डिजीज है वो या हाइपर सिक्रेशन ऑफ दी कोर्टिसोल हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन. बच्चों एक समराइज तरीके से आपको इसे बताने का प्रयास किया है. आई होप एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द कोर्टिसोल हार्मोन and lack of cortisol hormone and increasing of the cortisol hormone in our body. ओके, आगे चलते हैं हम यहाँ पर. अब क्या आपकी स्लाइड क्या बोलती है तो देखिएगा. लो ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड मेनली कोर्टिसोल stimulate neurosecretory cell in the hypothalamus to secrete corticotropin releasing hormone that is called CRH, that is feedback control. When the low blood level of the glucocorticoid hormone, तो ब्लड के अंदर हमारे पास में ग्लूकोकोर्टिकोइड और कोर्टिसोल कम हो गया तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस will be activate and that secrete CRH for corticotropin releasing hormone. CRH promotes the release of the ACTH from anterior pituitary.
ये बात हम कर चुके हैं। यहाँ पर सीआरएच कहां पर आएगा, सीआरएच यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा और कोर्टिकोट्रोप सेल है उसको स्टिमुलेट करता है, देन दैट सीक्रेट एसीटीएच एंड एसीटीएच फ्लो इन द ब्लड टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स वेयर इट स्टिमुलेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेशन। क्लियर बच्चों? तो ये बात है, मैं इसको एक या फ्लो डायग्राम के रूप में यह बता रहा हूं। व्हेन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोर्टिसोल, ये कंडीशन हमारी कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन आई। इस कंडीशन से क्या हुआ, hypothalamus neurosecretory cell will be activated. Hypothalamus neurosecretory cell activate and secrete CRH, यहां से CRH रिलीज हुआ, then CRH through blood stream come into the anterior pituitary and activate what? Corticotrope cell and that secrete ACTH. तो यहां पर बच्चों क्या सीक्रेट हुआ, यहां पर ACTH है वो रिलीज हुआ, देन ACTH through blood stream come into the adrenal cortex, what region? तो zona fasciculata, and zona fasciculata will secrete glucocorticoid. The mainly glucocorticoid is the cortisol, and cortisol जैसे ही यहाँ पर आएगा तो मेनी फंक्शंस, ग्लूकोज का लेवल हायर करेगा, यहाँ पर लिपिड ब्रेक करेगा, यहाँ पर लिपिड ब्रेक यहाँ पर करता है, और हम कह सकते हैं यहाँ WBC लेवल ऑफ द WBC विल डिक्रीज। ये कुछ यहाँ पर फंक्शंस, मेन फंक्शंस है वो यहाँ अकर बाय दी कोर्टिसोल हार्मोन। हम एक फ्लो डायग्राम के रूप में इस बात को समझा सकते हैं कि इस प्रकार से ये रेगुलेट होता है। तो इस प्रकार व्हाट इज द मेटाबॉलिक इफेक्ट बाय द कोर्टिसोल हार्मोन। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेटाबॉलिक इफेक्ट के अंदर फर्स्ट इज दी ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अपॉन स्टिमुलेशन बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिवर सेल the convert certain amino acid or lactic acid to glucose। तो मीनिंग यहाँ ग्लूकोज को इंक्रीज करवा रहा है किसी एमिनो एसिड से इन द लिवर अदर देन दी कार्बोहाइड्रेट। लैक्टिक एसिड से यहां पर लैक्टिक एसिड से इसको कन्वर्ट किस में करवा रहा है, ग्लूकोज के अंदर। तो इट मीन्स the level of the glucose increase in the blood at the presence of the cortisol hormone। तो हमने समराइज तरीके से वहां पर बताया था, आपको किया था कि ग्लूकोज का लेवल इस प्रकार से यहाँ हायर होता है। Such conversion of a substance other than glycogen or another monosaccharide into glucose is called the gluconeogenesis। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एनसीईआरटी का वर्ड है ये। तो यहां क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कोर्टिसोल यहां फंक्शन करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिविटी विल बी इंक्रीज एट द प्रेजेंस ऑफ द कोर्टिसोल हार्मोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां फंक्शन हुआ। देन रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल द रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस the additional glucose supplied by the liver cell and provide tissue
with ready source of ATP to the combat a range of the stress include exercise, fasting, flight, and temperature, extreme and high altitude, and bleeding, infections, surgery, trauma, disease. Many type of stress will when develop in our body, then glucose are helpful and cortisol are helpful for resistance to the stress due to higher level of the glucose in our liver cell. What type of resistance? Like when we going into the exercise and we suffering from the fasting and flight or fight, then we suffering from the higher temperature, extreme temperature, or high altitude, or bleeding, infections, surgery and trauma, and many type of disease when occur in our body, then the cortisol will be helpful for that type of स्ट्रेस, उससे निपटने के लिए बच्चों यहाँ हेल्पफुल है. देन सेकंड, फैट मेटाबॉलिज्म. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट द लिपोलाइसिस. एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चों, इसलिए पूरी संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन की, और कई बार क्वेश्चन इसे पूछा भी गया है नीट के अंदर कि ये लिपोलाइसिस का फंक्शन भी कर रहा है. The breakdown of the triglyceride का mean lipid, fatty acid, and the release of fatty acid from the adipose tissue into the blood. हमारी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है, उन एडिपोज टिश्यू को ये रिलीज करवाता है. कहां पर रिलीज करवा रहा है? ब्लड के अंदर रिलीज करवा रहा है, ब्रेक डाउन करके ट्राइग्लिसराइड को और फैट को. जो फैट वहां डिपॉजिट है, उस फैट को बच्चों बाहर निकालने में ये हार्मोन हेल्पफुल है. एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. क्वेश्चन भी बच्चों यहां पर पूछा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी. द कोर्टिसोल इज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. The glucocorticoid inhibit white blood cells. Okay, very very important word. ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है, किसको इनहिबिट करता है, कौन सी ब्लड सेल को इनहिबिट करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड और कोर्टिसोल. तो डब्ल्यूबीसी को इनहिबिट करता है, दैट पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लेमेटरी response. Unfortunately, the glucocorticoid also retard tissue repair, and as a result, they slow wound healing. Okay, बच्चों, then these are very useful in the treatment of chronic inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis. ध्यान रखिए बच्चों, rheumatoid arthritis डिजीज में बहुत हेल्पफुल है कोर्टिसोल हार्मोन. rheumatoid arthritis का मीनिंग क्या है? हमारे जो जॉइंट है, जितने भी जॉइंट है, और जॉइंट पेन कई बार हो जाता है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, वहां पर हम कह सकते हैं जलन महसूस होती है, तो उस समय इरिटेशन होता है वहां, तो उस समय यह हार्मोन है उसकी थेरेपी दी जाती है. हमारी बॉडी भी उस समय क्या है, यह हार्मोन रिलीज करके हमें रिलैक्स देने का काम करती है. जब बॉडी यह हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रही है, उस समय हम बाहर से इंजेक्शन के मेथड से हम हमारी बॉडी के अंदर यहाँ वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं. तो ये इस प्रकार से बच्चों ये हार्मोन हेल्पफुल है. द सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों. ये क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्पफुल इन द इम्यून सप्रेस. तो कोर्टिसोल है वो इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन. दिस हार्मोन इज इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन बच्चों, ये क्वेश्चन यहां पूछा जाता है. Then because it check the immune reaction by antibodies, so it is also used in allergy and organ transplantation. एलर्जी के समय ये हार्मोन है वो हेल्पफुल है. नाउ ए डे
The cortisol are used in the transplantation of organ to retard tissue rejection by the immune system. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, ये भी हम पहले भी बता चुका, फिर एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ कि इम्यूनोसप्रेशन है तो इसलिए हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, उसमें ये हार्मोन हेल्पफुल है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्पफुल इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, cornea transplantation या another type of organ transplant from one person to another person, which type of hormone helpful in this method? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? cortisol hormone is a most useful hormone for the organ transplantation. Okay, then sex hormone, third type of hormone, sex hormone, which is secreted by the zona reticulata, sex corticoid hormone or gonadocorticoid hormone. Also we can see that other name of the sex hormones, sex hormone, sex corticoid hormone, gonadocorticoid hormone. Then the sex hormone secreted by adrenals are called gonadocorticoids. Sex hormone also secreted by the gonads like testes and ovary, but higher amount of the sex hormone secreted by the gonads, but the least amount of the sex hormone, both sex hormone like male and female sex hormone secreted by in a single person by the adrenal cortex of the zona reticulata region. They are secreted in the very small amount by zona reticulata, वेरी स्मॉल अमाउंट। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन, द मेल हार्मोन आर कॉल्ड द एंड्रोजन्स and the female hormone is called the estrogens, that are which are sex hormone. The female sex hormone are the estrogen and the male sex hormone is called the androgens. Both type of hormones secrete in the male and as well as in the female by the adrenal cortex. Both the hormone are secreted by men and women both, but sex hormone secreted by gonads mainly. Inactive, the sex hormone of opposite sex secreted by the adrenal gland. ये हार्मोन मोस्टली इनएक्टिव रहते हैं, एक्टिव जो होते हैं वो कौन से होते हैं? गोनाड्स के हार्मोन होते हैं, इसलिए अपने अपने सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। मेल के अंदर मेल के कैरेक्टर, फीमेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर यहाँ डेवलप होते हैं। दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मसल्स, external genitalia and sexual behavior. Male hormone secreted by the adrenal gland is mainly dihydroepiandrosterone, DHEP. It is very very important. यहाँ फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं DHEA का, तो डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन हार्मोन इज ए मेल हार्मोन. फीमेल सेक्स हार्मोन progesterone and estrogens are secreted in the minute quantities in the male and female. Then next is हम देखें एड्रिनल मेडुला. अब एड्रिनल मेडुला second part of the adrenal gland, first part of the adrenal gland is adrenal cortex. अब तक हमने जो पढ़ा, जितना भी हमने स्टडी की है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन की बात की थी. दैट एड्रिनल मेडुला, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लैंड. इट इज फॉर्म बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन. किससे बनता है ये? पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट है बच्चों, पूरा न्यूरॉन से बना हुआ पार्ट है. दो टाइप के स्पाइनल गैंग्लियोनिक होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारे अंदर. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टू पार्ट है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आप देखोगे बच्चों कि यहाँ एक गैंग्लियन है, इससे पहले जो न्यूरॉन होते हैं इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. इसके बाद में एक गैंग्लियन और है, इसे हम कहते हैं गैंग्लिया प्री गैंग्लिया, इसे कहते हैं पोस्ट गैंग्लिया. इसके बाद में जो न्यूरॉन है बच्चों, इसको हम कहेंगे यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन.
पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन की मॉडिफिकेशन से यहां पर ये पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन होकर एड्रिनल मेडुला बनाता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये क्या बनाएगा यहाँ पर एड्रिनल मेडुला। इन सेल को हम कहते हैं यहाँ क्रोमोफिन सेल्स या फियोक्रोमोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन ये होता है। तो देखिएगा एड्रिनल मेडुला, इट इज मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया। व्हाट टाइप ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन मॉडिफाइड होता है? सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, it develop from same embryonic tissue as all other sympathetic ganglia. Its cells lack axon and form cluster around large blood supply. ध्यान रखिए बच्चों, क्या होगा, यहां जो सेल है वो इस प्रकार से ये सेल होगी जिसमें साइटोन है, डेंड्रोन है, एक्सोन नहीं होगा। और ये सेल या क्रोमोफिन सेल्स अपन कह सकते हैं इनको, और एक क्लस्टर ऑफ सेल यहां पर बनती है इस पार्ट के अंदर। तो हम यहां पर कहेंगे एक्सोन यहां पर एब्सेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ न्यूरोनल पार्ट एब्सेंट इन द न्यूरॉन that is found in the medullary region. हम यहां पर कहेंगे एक्सोन। इट हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल आर कॉल्ड क्रोमोफिन सेल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्रोमोफिन सेल्स, और ऑल्सो नोन एज दी फियोक्रोमोसाइट सेल्स। ये भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फियोक्रोमोसाइट सेल्स। These cells are connected with the preganglionic motor fiber of sympathetic nervous system. तो किसके साथ में ये कनेक्ट है? पहले जो मॉडिफिकेशन है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर का, तो ये कनेक्ट है यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसके साथ में ये कनेक्टेड है। Which type of hormone released by the adrenal medulla? What type of hormone secreted by the adrenal medulla? The two hormones are secreted by this part. These collectively are called catecholamines. Okay बच्चों, very very important hormone. It is modified amino acid, so called the amine nature of hormone. ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। These hormones are synthesized by chromatin cells with tyrosine amino acid. ध्यान रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। किससे बनता है? टायरोसिन से। कौन? कैटेकोलेमिन्स, एड्रेनल मेडुला के हार्मोन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टायरोसिन से और कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? तो हमने थायरोक्सिन हार्मोन की बात की थी। थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में भी टायरोसिन का अपना इन्वॉल्वमेंट होता है। आयोडीन और टायरोसिन मिलके यहाँ पर मोनोआयोडोटायरोसिन बनाते हैं, और इससे आगे थायरोक्सिन T3 और T4 हार्मोन फॉर्म होगा। तो यहाँ भी टायरोसिन है और वहां पर भी टायरोसिन था, इसलिए टायरोसिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ चल रहा है। द टायरोसिन बना रहा है, देयर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन बनाएगा, एड्रिनेलिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन फर्स्ट, एंड सेकंड इज नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोर एड्रिनेलिन हार्मोन। एड्रिनेलिन हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन इज ए टोटल हार्मोन का यहाँ पर 80% पार्ट है वो एड्रेनलिन है। तो मेजर अमाउंट है वो किसकी है? यहाँ एपिनेफ्रिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द एड्रेनलिन हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन? इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी। कैसे? तब देखिएगा, दिस हार्मोन इज 80% पार्ट ऑफ द टोटल हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला. It was termed as the emergency hormone by Walter Cannon because this hormone prepared the body to face unavoidable emergency situation.
कौन कह रहा है? केनन, वॉल्टर केनन ने बच्चों इसको कहा था द एपिनेफ्रिन हार्मोन इज इमरजेंसी हार्मोन। क्यों इमरजेंसी हार्मोन कह रहे हैं? इन द एनवायरमेंट, इन द नेचर, इन द लाइफ, मेनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन, कंडीशंस विल बी डेवलप, हो सकती है, कैन बी डेवलप। अब उस समय हमें बचाने का काम कौन करेगा? प्रिवेंट काम करने का काम कौन करेगा? तो अब बॉडी से एपिनेफ्रिन हार्मोन बच्चों रिलीज होगा, सीक्रेट होगा, और वो हमें प्रिपेयर करेगा उस कंडीशन से बचाने का। जब जब हमें मोटिवेशन, जब हमें कोई जज्बा, जुनून, जोश डेवलप होता है किसी काम करने के प्रति, हम कोई जोश डेवलप करते हैं, इच्छा डेवलप करते हैं, विल पावर डेवलप करते हैं, तो कौन करता है? वो इच्छा एपिनेफ्रिन ही होती है। एपिनेफ्रिन का लेवल हमारे अंदर जब हायर रहता है तो सामने वाली कोई भी कंडीशंस है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन का सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं, उस सिचुएशन का सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं। सपोज कब ये लेवल हाई रहता है? जैसे हमें कोई एथलेटिक्स की टूर्नामेंट चल रही है और उसके कंपटीशन में हमने भाग लिया, तो हमारा भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उस समय हमारी इच्छा, हमारी विल पावर होती है कि हम मान लो रनर है या हम बॉक्सर है, तो हम सामने वाले को बीट कैसे करें, इसके लिए हम हमारे अंदर पहले बॉडी को मेंटेन रखते हैं, प्रिपेयर करते हैं उस काम करने के लिए। उस समय जो बाउंड्री लाइन पर हम रन करने के लिए खड़े हैं और रेफरी 1 2 3 बोलने वाला है, तो उस समय 1 मिनट 2 मिनट का हमें जो टाइम दिया जाता है, हम हमारे एपिनेफ्रिन के लेवल को उसमें बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि बॉडी प्रिपेयर रहे उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। और हम जैसे ही एपिनेफ्रिन का लेवल हायर होता है बॉडी के अंदर, तो ऑल फंक्शंस है, ऑल ऑर्गन्स है, उसको हायर फंक्शन करवाने के लिए एपिनेफ्रिन का ऑर्डर देता है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी ब्रीदिंग रेट, हमारी हार्ट बीट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सब की एक्टिविटी हायर हो जाएगी। और ये हायर हो जाएगी तो हम हमारा वर्क है वो हायर कर लेंगे, तेजी से कर लेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हायर हो जाएगा। तो ये कौन करवाता है? ये एपिनेफ्रिन हार्मोन करवाता है। सपोज करो आप एक बंद कमरा है, बंद रूम है, गेट बंद है, और आप जैसे ही रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, रूम जैसे ही ओपन करोगे, खोलते ही सामने एक आपके सामने कोबरा है और आपको वहां से जाना भी, अंदर भी एंटर करना है। आपका आधा पैर अंदर और आधा पैर बाहर है और सामने कोबरा खड़ा हुआ है, तो उस समय एक बार आपको डर लगेगा, लेकिन जैसे ही डर लगेगा तो एक सिचुएशन आएगी बॉडी के अंदर, अपने नर्वस सिस्टम के अंदर, अपना नर्वस सिस्टम उससे एक्टिवेट होगा और एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। और वो एपिनेफ्रिन जैसे बॉडी के अंदर फैलेगा, यहाँ पर सर्कुलेट होगा, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम यहाँ पास से गुजर जाए, हम उसका मुकाबला करें, हम कोई और यहाँ पर ऐसी चीज है जिससे हम प्रोटेक्ट हो, और हम तुरंत क्या है उस हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेंगे। कौन करेगा? एपिनेफ्रिन करेगा, और जिससे हम यहाँ लड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। इसलिए एपिनेफ्रिन को फाइट टू फ्लाइट हार्मोन भी कहा गया है। जब हमारे किसी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उस समय हमारे अंदर जो जोश आता है, हमारे अंदर जो ताकत आती है, हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, एनर्जी का लेवल उस समय हायर होता है। किसी के साथ में लड़ते हुए, झगड़ते हुए, तो कौन करवाता है? एपिनेफ्रिन करवाता है। जब हमारे अंदर जोश, जुनून और जज्बा आता है कि हम इस नीट को क्रैक करके ऑल इंडिया टॉपर बनेंगे, हम एम्स दिल्ली में हमारा एडमिशन लेंगे, तो ये काम कौन करवाता है? ये एपिनेफ्रिन करवाता है। इसका लेवल बॉडी के अंदर हाई रहेगा तो उस समय सब कुछ है वो त्याग दोगे आप। जब एपिनेफ्रिन का लेवल हाई रहता है बच्चों, उसमें भूख नहीं लगती है, उस समय प्यास कम लगती है, उस समय सलाइवा का सीक्रेशन कम होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी उस समय कम होगी, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, फैट है, वो ज्यादा काम आएगी, और वो काम आएगी, हम वहां पर काम कर लेंगे। उस समय मैच्योरेशन भी कम होता है। अगर जितने भी एक्टिविटीज हो रही है बॉडी की, व्हेन द लेवल ऑफ द एपिनेफ्रिन हायर इन आवर बॉडी, तो उस समय हम
हमारा जो ध्यान है वो केवल एक ही साइड में रहता है और हम वो कार्य कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा दौड़ते समय, किसी प्रतियोगिता, किसी कंपटीशन के समय हमारे को भूख कम लगती है, सलाइवा कम सीक्रेट होती है, यूरिनेशन भी कम होता है। क्यों? कि लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन ज्यादा है। यदि इसका मीनिंग ये कम है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय काम कर रहा है। तो ये बच्चों आप यहां पर समझे होंगे। तो हम कह सकते हैं जब जब अनअवॉइडेबल कंडीशन, सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप होती है तो उस समय हमारी बॉडी को सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? एपिनेफ्रिन हार्मोन करता है। सो एपिनेफ्रिन नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। फाइट टू फाइट हार्मोन, फाइट टू फ्लाइट हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन, also known as triple F hormone, meaning fear, fight, flight, 3 F hormone known as the epinephrine hormone. Epinephrine and both norepinephrine, both hormone functions are similar, not antagonistic. यहां इनके फंक्शन, मोस्ट ऑफ फंक्शन है वो सिमिलर है। तो ये किसी आगे यहां पर फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ द एड्रेनालिन, इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन, सो कॉल्ड वेजोकंस्ट्रिक्शन हार्मोन। द हार्मोन एनहांस द फ्लो ऑफ ब्लड बाय वेजोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन, हार्ट, लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। हमारे वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लिवर और स्केलेटल मसल्स है, उसको यह हार्मोन ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड BMR, अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड इंक्रीज and adrenal enhance the heartbeat and thus increase cardiac output. Due to this, circulation of the blood become faster. इस समय ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा? फास्टर होगा, प्रेशर हाई होगा, BMR हाई होगा, हार्ट बीट इस समय बच्चों हाई होगी एंड हार्मोन स्टिमुलेट द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई मसल्स टू रिलैक्स। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट यहां पर हाई होगी। सो एड्रेनालिन हार्मोन इज यूज टू क्योर अस्थमा। अस्थमा के टाइम ये बच्चों हमारे ट्रेकिया की मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्पफुल है, तो उसे क्योर करता है। इट डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, आंखें बड़ी बड़ी करना, डायलेट करना, ये भी काम करता है। यहाँ अपने आई को डायलेट करने का काम भी यह हार्मोन यह करता है। इट कंस्ट्रिक्ट द इरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर एंड हेयर आर राइज्ड। आप देखते हो डर के समय कई बार यहाँ पर ये मसल्स है, ये जो इरेक्टर पिलाई मसल्स है का हमने हेयर फॉलिकल के साथ में यह कनेक्ट रहती है और जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट रहेगी तो जैसे हार्मोन आएगा तो हेयर यहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं, राइज हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि मसल्स किसको कांटेक्ट करेगी तो हेयर है वो सीधे हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी इस प्रकार से ये कंडीशन जो हमें कहता है कि अनफेवरेबल कंडीशन का इंडिकेशन है हेयर को खड़ा होना। सर्दी के समय ज्यादा सर्दी होती है और उस समय हेयर है वो स्ट्रेट हो जाती है, ये हमारी बॉडी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन का यहाँ संकेत है। और ये भी बताया जाता है, ये इंडिकेशन है कि एपिनेफ्रिन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। इट हार्मोन स्टिमुलेट कंट्रैक्शन इन the spleen. As a result of it, spleen power it the store blood into the bloodstream. Then due to the effect of this hormone, clotting period of blood is reduced. The hormone also stimulates the uterus of the female animal to the contract. Then adrenaline provide the body with an emergent chemical defense mechanism in stress condition that threaten the physical integrity and chemical consistency of the body. Example accident, example restlessness, example fear, anger, mental tension and pain.
दैट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंटीग्रिटी है, उस समय यह हार्मोन है वो प्रोवाइड करवाता है ए केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। देन it immediately prepare the body to face the emergency by a violent stress of alarm reaction. The cortisol hormone of adrenal cortex serve to the maintain the body in living condition and recover it from the severe effect of stress reaction. साथ में ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रेस में कोर्टिसोल हार्मोन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। Then the hormone of the adrenal medulla prepare the animal for the fear, fight and flight. In emergency condition, by excess secretion of these hormone, adrenaline hormone is called the 3F, triple F hormone, and adrenal gland is called the triple adrenal gland is called the triple F gland or 4S gland। आगे एक वर्ड और भी आएगा। The noradrenaline hormone or norepinephrine hormone, it is only 20% part of the total hormone secreted by the adrenal medulla। 80% क्या है? एपिनेफ्रिन है। 20% क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन है। It act as the vasoconstrictor, thus increase the blood pressure, and exception it does not constrict the coronary artery of the heart। ध्यान रखना, और सब फंक्शन है यहाँ एपिनेफ्रिन जैसे ही है, बट कोरोनरी आर्टरी पर इसका फंक्शन ऑपोजिट है या ये इस पर कार्य नहीं करता है। क्या? कंस्ट्रिक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। इरेगुलेटरी सिक्रेशन ऑफ द एड्रिनल हार्मोन, तो यहां तक बच्चों हमने यहाँ पर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ हम एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। According to that hormone, the adrenal gland, also known as the 4S gland, 4S for stress, 1S for stress, 1S for sex, 1S for salt, 1S for sugar, 1S for sugar। तो ये यहाँ फॉर मेन फंक्शन बॉडी के, स्ट्रेस में हेल्पफुल है, सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्पफुल है, सोल्ट को रेगुलेट कर रहा है, शुगर को रेगुलेट कर रहा है। तो इस प्रकार फॉर मेन फंक्शन है बच्चों, इनको रेगुलेट कर रहा है। तो हम इस ग्लैंड को द एड्रिनल ग्लैंड, आल्सो नोन एज द 4S gland, due to 4 type function regulated by that type of gland। It is very very important we have understood about that topic, absolutely clear। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम अगले लेक्चर में यहाँ पर करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे यहाँ डिसऑर्डर्स हैं इस ग्लैंड से होने वाले, जो इस हार्मोन की हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन, जिसमें हम समराइज हमने बात की थी, कॉन्स, पुशिंग एंड एडिशन, डिटेल तौर पे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।